अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन का छठा ख्वातीन कन्वेंशन 8 मार्च को लखनऊ में इख्तिताम पजीर हुआ। इस बार तमाम पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनियों में काम करने वाली ख्वातीन मुलाजमीन का कन्वेंशन 3 साल के वक्फे से लखनऊ में मुनक्किद हुआ। कन्वेंशन में मुल्क भर से इंश्योरेंस सेक्टर में काम करने वाली 300 से ज्यादा ख्वातीन ने शिरकत की। होटल रेगनेंट में मुनक्किदा नेशनल इंश्योरेंस वुमेन कन्वेंशन का इफ्तिताह फ्रंटलाइन मैगजीन की सीनियर डिप्टी एडिटर टीके राजलक्ष्मी ने किया। कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर एक नाजुक मोड़ पर मुनक्किद होने वाले इस कन्वेंशन ने सरमायादाराना हुकूमतों की तरफ से दिए गए कॉरपोरेट दोस्ताना फैसला साजी के इंतजामात के ख्वातीन पर पड़ने वाले मनफी असरात पर तशवीश का इजहार किया। यूक्रेन और फ़लस्तीन में जंग ने जिस तरह से ख्वातीन की जिंदगियों को मुतासिर किया, इस पर संजीदगी से बहस करने के बाद कन्वेंशन ने एक करारदाद भी मंजूर की, जिसमें जंग के खात्मे का मुतालबा किया गया। कन्वेंशन जो हो रहा है वुमेंस डे पे, मैम बताइए जो आपके कार्यक्रम क्या क्या कार्यक्रम है? Today, the insurance employees who are working in the Life Insurance Corporation of India and the 4 public sector general insurance companies are assembling here on the occasion of the International Women's Day, and we are having our 6th All India Insurance Working Women's Convention at Lucknow today. In this 6th convention, women comrades from all over the country, from Jammu Kashmir to Kanyakumari and from Mumbai to Kolkata, even from remote places, they have come and they are participating. And today we are discussing that International Women's Day. At that time they put forth the demands that there should be proper working hours, limited working hours, there should be equal pay for equal work, and they were demanding the political right of the right to vote. And today when we are observing this International Women's Day, we are realizing that still the first 2 demands are to be achieved, because today also the working hours are not limited to 8 hours, and similarly the discrimination in pay is there, though not in the government sector and the public sector. In the unorganized sector, wage disparity is there. And on the political right, though we have achieved the right to vote, still the representation of women in the decision making bodies is to be realized. And apart from this, we want to have that the prevention of sexual harassment at workplace, that act has been enacted. But as per the act, the committee of internal complaints committee for enquiring such complaints and the provisions of the act to create awareness amongst the men and women employees are not being implemented. So about all these things we are discussing in this conference today, and our conference is going to decide that in the days to come we are going to carry forward our struggle to protect Life Insurance Corporation of India and the 4 public sector general insurance companies in public sector on the issue of recruitment, and apart from that against the policies of the government, economic and social policies which are depriving the basic rights of the unorganized sector workers and the women and the minorities. So this conference is going to take decision on all these things. Ma'am, today is a सर आज आपका ऑल इंडिया इंश्योरेंस वुमेंस कन्वेंशन है, आप वाइस प्रेसिडेंट है, क्या कहना चाहेंगे सर आज के प्रोग्राम में? आज हम लोग यहाँ लखनऊ में अखिल भारतीय स्तर पर जो बीमा कर्मचारी महिला हैं उनका 6वां अधिवेशन अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित कर रहे हैं। और इस समय जो हमारी सम्मुख चुनौतियाँ हैं, जो राजनीतिक रूप से हैं और जो हमारे संस्था के अंदर काम करते हुए चुनौतियाँ हैं, उन चुनौतियों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और इस अधिवेशन में राइट फ्रॉम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर पहाड़ी तक की 300 से ज़्यादा महिला साथी यहाँ पर शिरकत कर रही हैं। और मुख्य तौर पर हम लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि आज जब हिंदुस्तान की इकोनॉमी 90 से लेकर और 2025 के बीच सरकार बोल रही है कि ये लगातार ग्रो कर रही है, हम ये अनुभव कर रहे हैं कि उसमें जो उनकी भागीदारी है, जो एक ज़माने में 30% के आसपास हुआ करती थी, वो घट के 18% रह गई। वहीं हम ये भी अनुभव कर रहे हैं कि आज़ादी के 70 वर्ष गुजरने के बावजूद भी महिलाओं और पुरुषों के बीच में जो वेतन दिए जा रहे हैं, जो मजदूरी दी जा रही है, उसमें आज भी भेदभाव किया जा रहा है। जहाँ पुरुषों को 82 रुपये मिल रहे हैं, महिलाओं को 18 रुपये मिल रहे हैं। इन सारी चीज़ विषयों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और उसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि सरकार का जो नीति
देश के सार्वजनिक उद्योगों को कमजोर करने के लिए काम कर रहा है। सरकार की जो नीति हिंदुस्तान में बेरोजगारी बढ़ाने के लिए काम कर रही है, हिंदुस्तान की जो नीति देश के अंदर लोगों के अंदर व्यवहार बढ़ाने का काम कर रही है, उन सारे विषयों पर भी हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं। और हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि जब देश के अंदर नौजवान रोजगार के लिए तलाश कर रहे हैं, MBA, BA, MCA, LLB, LLM करने के बाद उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, तब भारतीय जीवन बीमा निगम में जहां कर्मचारियों की संख्या लगातार कम होती जा रही है, हम लोग भी भर्ती की मांग कर रहे हैं। और 20 तारीख को हम लोगों ने हड़ताल करके सरकार को मैनेजमेंट से डिमांड किया है कि भारतीय जीवन बीमा निगम में अविलंब भर्ती होनी चाहिए, क्योंकि 36 करोड़ पॉलिसी धारकों को दिन प्रतिदिन सेवा देने में भी हम लोगों को बहुत सारी सुविधा का सामना करना पड़ रहा है। तो इस अधिवेशन में हम लोग अगले संघर्ष के कार्यक्रम तय करेंगे। और उसके साथ साथ हम लोग ये भी अनुभव कर रहे हैं कि वर्क प्लेस पे भी और सोसाइटी में भी महिलाओं के प्रति जो क्राइम है उसमें भी लगातार बढ़ रही है, चाहे वो कोलकाता की घटना हो, चाहे राजस्थान की घटना हो, उनके ऊपर भी अंकुश लगना चाहिए। बहुत सारे कानून होने के बावजूद भी सरकार के द्वारा कोई कारगर कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। इन सारी परिस्थितियों में हम लोग सरकार से ये भी डिमांड कर रहे हैं कि देश के अंदर लोगों को रोजगार देने के लिए, देश के अंदर लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए, देश के अंदर लोगों को शिक्षा देने के लिए सरकार की जो नीतियां हैं उन नीतियों से लगातार संकट बढ़ रहा है। और सरकार के द्वारा बीमा उद्योग में जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है उसको 74% से बढ़ा के 100% किया गया है, जो कि देश के लोगों की सेविंग को ऊपर विदेशी पूंजी का नियंत्रण स्थापित करेगा, जिससे न केवल हिंदुस्तान की आर्थिक क्षमता की संकट पैदा होगा, बल्कि देश के लोगों का जो पैसा बीमा कंपनियों में लगेगा, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों में लगेगा। 56 से पहले की स्थिति जब प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां काम क्या करती थी, वो वाली परिस्थितियां हिंदुस्तान की सरकार और IRDA पैदा करना चाहता है। इसको लेकर भी हम लोग संघर्ष के कार्यक्रम तय कर रहे हैं। और ये हमारा निर्णय है कि जिस दिन ये कानून पास किया जाएगा उसके बाद बीमा कर्मचारी देश के पैमाने पे हड़ताल करेंगे। और हम लोग सरकार से ये भी मांग कर रहे हैं कि जनरल इंश्योरेंस की जो 4 कंपनियां अलग अलग काम कर रही हैं उनको विलय करके एक कंपनी बनाया जाना चाहिए, ताकि वो ज़्यादा अच्छी तरीके से काम कर सके। सरकार देश के लोगों को मजबूत करते हुए सरकार को भी मजबूत कर सके। इन सारे विषयों को लेकर हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर आगामी समय में इन तमाम चीज़ों को लेकर देश के अंदर जो दूसरे ट्रेड यूनियन के लोग हैं उनको साथ में जोड़कर एक बड़े संघर्ष के कार्यक्रम तैयार करके सरकार की नीतियों में बदलाव करने के लिए हम लोग काम करें। जैसा कि सुनने में आ रहा था, LIC जो है कुछ उस पर उसकी तरफ से और डाउन होती जा रही है, इसकी क्या वजह है? सरकार जो भी कदम उठा रही है वो सारे के सारे कदम हिंदुस्तान के बीमा उद्योग को कमजोर करने के लिए उठाए जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पे सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया गया है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को 74% 100% किया जाएगा, आपको जानकर हैरत होगी कि 74% की अनुमति होने के बावजूद भी बीमा उद्योग में जो विदेशी निवेश आया हुआ है अब तक वो केवल 32% आया हुआ है। जब अभी वो 74% नहीं हो पाया, उसके बाद सरकार ग्लोबल फाइनेंस कैपिटल के दबाव में इस पूंजी को बढ़ाना चाहती है, अमेरिका के दबाव में बढ़ाना चाहती है, क्योंकि देश के लोगों की जो सेविंग है उसके ऊपर इन कंपनियों का नियंत्रण स्थापित होगा और देश के लोगों की जो सेविंग है वो देश के बाहर जाएगी। ये लेकर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। इसके अलावा सरकार के द्वारा जो दूसरे कदम उठाए गए हैं कि 1 साल में सरेंडर का जो अनुमति दिया गया है, सरकार के द्वारा जो कंपोजिट लाइसेंस की बात की जा रही है, सरकार के द्वारा जो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस बिल लाकर तीनों कानूनों में बदलाव करने की बात की जा रही है, कि सारे के